So, in today's session, we are going to discuss about flowchart. Okay. So, in today's session, first of all, I would like to welcome all of you. And in today's session, we are going to start uh, the another problem solving technique, that is flowchart. Okay. The first technique for problem solving technique was algorithm, and we have discussed in previous session about all the uh, basic requirements about algorithm, what is algorithm, which are the stages of algorithm, and what are the steps to write an algorithm. And we have also seen the basic example, and we have seen the example and how can we write an algorithm for a particular problem. Okay, so programming for problem solving, that is our subject. Okay, so there are mainly two types of problem solving technique. The first one is algorithm and the second one is flowchart. Okay. So in today's session, we are going to discuss about flowchart. Okay. So let's start our session for the understanding of concept of flowchart. So these are the topics that we are going to discuss in our today's session. The first one is basic introduction to flowchart, then symbols and meanings, and the next one is advantages and disadvantages of flowchart. Okay, so let's see the meaning and the actual introduction of flowchart. Okay, so the first topic is basic introduction to flowchart, and we are going to see the definition of flowchart. So flowchart is a graphical representation of sequence of logical steps of a program. ठीक है, एल्गोरिदम में हमने डिस्कस किया था, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिया जाता है तो उस प्रॉब्लम को जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे. ठीक है, तो हमने एल्गोरिदम्स कैसे लिखते हैं वो भी हमने देखा था. But the first thing that I want to differentiate here between algorithm and flowchart is algorithm जो हम लिखते हैं कोई भी प्रॉब्लम के लिए, उस algorithm का solutions हम set of instructions के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, say for example step 1 that is start, step 2 that is initialize variable, step 3 that means take input of variable etc etc. ठीक है, तो हम अल्गोरिदम को इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं. सो वो स्टेप्स सारे जो हम लिखते हैं अल्गोरिदम में, वो अल्गोरिदम के स्टेप्स क्या हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप अगर आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है उससे सॉल्व करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस देना हो. ठीक है, तो उसे हम इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब हम सेंटेंस लिखते हैं अल्गोरिदम में. बट द फ्लो चार्ट, द कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट इज टोटली डिफरेंट. Okay. Basically, it is also a one kind of problem solving technique. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिया गया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक टेक्निक ही है फ्लो चार्ट. बट फ्लो चार्ट में हम प्रोग्राम का जो सॉल्यूशंस देते हैं वो सॉल्यूशंस हम इंस्ट्रक्शन लिख के नहीं देते हैं, बट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं. So it is a one kind of chart. Okay, one kind of chart that will display the solution, step by step solution of a logical step by step solutions of a given problem. Okay, and it is graphical representation. Okay, so definition of flow chart will be flow chart is a graphical representation of sequence of logical steps of a program. Okay. So flowcharts use simple geometric shapes to depict processes and arrows to show relationships and process or data flow. तो जब हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो फ्लो चार्ट में हमने डेफिनेशन ये दी
कि भाई फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है कोई भी सॉल्यूशंस को, कोई भी प्रॉब्लम दिया गया है तो उसका सॉल्यूशन अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिक्स में अलग अलग सिंबल्स हमें रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कौन सा सिंबल होगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें स्टार्ट, तो पहला जो सिंबल होगा स्टार्ट के लिए वो कौन सा होगा, स्टॉप के लिए अगर सिंबल है तो वो क्या होगा, कोई भी अगर इक्वेशन हम लिखते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा था एल्गोरिदम, अगर हम सर्कल का एरिया हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन को ग्राफिकली किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। So flowchart use simple geometric shapes to depict processes and arrows to show relationship and process data flow. Okay. So these are the what we can say that graphical symbols are necessary to draw a flow chart for given problem and to find the solution. Okay. So processing and finding the errors generated during the problem solving becomes quicker and accurate as compared to working with algorithm, ठीक है। ग्राफिकली अगर कोई भी हमें चीज दिखाई जाती है तो वो हमारे माइंड में ज्यादा इम्पैक्ट करती है, मतलब जो ग्राफिकली हम देखते हैं उसे हम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं, और उसमें अगर कोई भी एरर जनरेट होती है तो उस एरर को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Then the flowchart allows breaking the complex problems into parts and at last connects them to represent solutions for the whole problem, ठीक है। तो flowchart है उसके यूज से हमें जितना भी बड़ा प्रॉब्लम, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना दिया गया हो, जो भी बड़ा प्रॉब्लम अगर हमारे पास है तो उसे हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, और उस मॉड्यूल के हिसाब से जो भी सॉल्यूशंस हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम के लिए, उस सारे प्रॉब्लम्स को हम एक साथ कनेक्ट करके पूरे का पूरा जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है उसका सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लो चार्ट। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। As you can see here, there are three columns are available: symbol, symbol name, and purpose. So graphically representation, जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम का रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हम सबसे ज्यादा सिंबल्स का यूज करेंगे। कोई भी प्रोसेस अगर हमारे पास आती है तो उस प्रोसेस में जो भी सिंबल हमें यूज करने हैं उस सिंबल के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट symbol is for start and stop. Remember one thing in whenever you are drawing a flow chart, so start and stop. Start, it is the first symbol of beginning at the flow chart, and the stop, it is the symbol at last. We are indicating that now problem is over. Okay, so the solution is generated. So first symbol and last symbol will be same, that is for start and stop. So that symbol is used at the beginning and end of the algorithm to show start and end of the program, ठीक है। सेकंड है रेक्टेंगल का सिंबल है। रेक्टेंगल का सिंबल जो है उसे हम क्या कहेंगे, उसका नाम क्या हम रखेंगे, प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस अगर आपको डिफाइन करनी है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल को, से फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5, देन आपको कोई वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखाना है, से फॉर एग्जांपल a प्लस प्लस a माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस a माइनस माइनस a, तो उसके लिए आप प्रोसेस का यूज करें, ठीक है। Then the third symbol, that is parallelogram. The symbol name is parallelogram, and in mathematics the symbol name is parallelogram, but here in flowchart that symbol is used for input and output purpose. कोई भी अगर वेरिएबल आपको दिया गया है, आप वेरिएबल की वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू अगर आपको यूजर के पास से लेनी है, that means that will define the input process. Okay,
सो उसके लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे। जब भी कोई इक्वेशन अगर आपको दी गई है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो हमारी प्रोसेस हो जाएगी। और c इज इक्वल टू ए प्लस बी इक्वेशन लिखने के बाद जो a प्लस बी की वैल्यू है वो हमें रिजल्टेंट वेरिएबल में लेनी है, फॉर एग्जांपल c में। और c को अगर हमें आउटपुट मतलब डिस्प्ले करवाना है, दैट मींस दैट विल बिकम आवर आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हम मैथमेटिक्स जो सिंबल है दैट इज पैरेललोग्राम, उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। So that input output symbol is used for denoting program inputs and outputs. Then the next one is decision symbol. That is what we can say that the another name of decision symbol is diamond. Okay, so that will define a diamond. Diamond का symbol फ्लो चार्ट में कब यूज करेंगे? तो जब भी आपको डिसीजन लेना हो, से फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा था इफ एल्स का यूज देखा था हमने। तो इफ एल्स जब भी आप यूज करेंगे, से फॉर एग्जांपल इफ वैल्यू इज लेस देन 10, तो उसका आंसर आपको यस और नो में मिलेगा, ठीक है। अगर वैल्यू लेस देन 10 है तो यस मिलेगा, अगर वैल्यू लेस देन 10 है नहीं है तो आपको नो में आंसर मिलेगा। तो डिसीजन लेना है, अगर लेस देन 10 है तो क्या करना है, अगर लेस देन 10 नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। तो यस और नो में जब भी आपको डिसीजन डिफाइन करवाना हो कोई भी प्रॉब्लम में, ठीक है, तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे उसका नाम है डिसीजन और उसका दूसरा नाम है डायमंड, ठीक है। तो ये सिंबल हम जब भी से फॉर एग्जांपल स्टैंड फॉर डिसीजन स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम में अगर कोई ऐसी चीज आपको दिखानी पड़ती है जहां पे आपको डिसीजन डिफाइन करना पड़ता है यस और नो में, ठीक है, या ऑन और ऑफ है, 0 और 1 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टू पॉसिबिलिटी अगर दिखानी है यस और नो के हिसाब से, तो आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, दैट इज डिसीजन सिंबल, ठीक है। द अनदर सिंबल दैट इज एरो, ठीक है। यहाँ पे एक ही एरो मैंने दिखाया है, दैट इज टॉप टू बॉटम। सो बॉटम टू टॉप भी हो सकता, बॉटम टू टॉप अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट लेफ्ट एरो और राइट एरो भी होगा। कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे एरो 4 टाइप्स के दिए गए हैं, टॉप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, सॉरी। तो वो एरो हम फ्लो चार्ट में यूज कर सकते हैं। मतलब एरो जो एरो की साइन है, एरो का जो सिंबल है, ठीक है, वो क्या दिखाता है? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट शेप्स। मतलब फ्लो चार्ट जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो फ्लो चार्ट में हमें टॉप टू बॉटम से जाना है, तो हम पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, उसे डिफाइन करने के लिए हम एरो का सिंबल है वो यूज करते हैं, ठीक है। Then another shape is on page connector, ठीक है। ऑन पेज कनेक्टर से फॉर एग्जांपल आप एक ही पेज में फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पेज का आपने तो एक पेज में आपने दो पार्ट दिए हैं, ठीक है। एक पेज का आपने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। तो एक पेज में जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट से लेके लास्ट पे मतलब पेज के लास्ट पोजीशन तक एल्गोरिदम आपने लिख दिया। अभी भी एल्गोरिदम कंटिन्यू है, तो पेज के दूसरे साइड पे आपको एल्गोरिदम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेम पेज पे अगर आप एल्गोरिदम फिर से स्टार्ट करके कंटिन्यू करते हैं तो उसे हम ऑन पेज कनेक्टर सिंबल से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इट कनेक्ट्स टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट विच आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। सो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन पेज कनेक्टर। देन ऑफ पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर मतलब एक पेज में एल्गोरिदम आपने ड्रॉ करते करते पूरा पेज खत्म हो गया, अब दूसरे पेज में आप जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे पेज में जब आप जाएंगे, फ्लो चार्ट कंटिन्यू है, ठीक है, आप ड्रॉ करना अभी स्टार्ट ही है, अभी आउटपुट नहीं मिला है। तो एक पेज में आपका फ्लो चार्ट मतलब ड्रॉ करते करते पूरा पेज खत्म हो गया, अब आपको जाना पड़ेगा दूसरे पेज में। तो एक पेज से जब भी आप दूसरे पेज में फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए जो हमें सिंबल यूज करना है उस सिंबल का नाम है ऑफ पेज कनेक्टर। मतलब एक पेज में ही अगर आपने दो पोर्शन फ्लो चार्ट के लिए डिवाइड कर दिए तो सेम पेज पे होगा, उसे हम यूज करेंगे ऑन पेज कनेक्टर। और अगर एक पेज से दूसरे पेज में आप जाते हैं
तो उसे हम दिखाएंगे ऑफ पेज कनेक्टर के हिसाब से, ठीक है। So these all are the symbols, or what we can say that these all are the important symbols of flow chart. जब भी आप कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो इसी सिंबल्स में इसी सिंबल्स के यूज से आपको फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है, ठीक है। So these all are the symbols of flow chart. Then we will see advantages and disadvantages. So let's see the portion of advantages of flow chart. So the first advantage of flow chart is flow charts are better way of communicating the logic of system, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिया गया है तो उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन करेंगे, उस प्रॉब्लम को आप फ्लो चार्ट से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्लो चार्ट इट विल गिव्स अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। मतलब आप ग्राफिकली जो भी समझाना चाहते हैं, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो अगर आप फ्लो चार्ट से दिखाएंगे, सो इट इज अ बेटर वे फॉर communicating the logic of system. Okay. Then the second advantage will be flowcharts act as a guide for blueprint during program design. प्रोग्राम जब भी आप लिखते हैं कोई सेम प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, तो प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, तो वो अगर आप फ्लो चार्ट में देखते जाएंगे तो आपको इजीली प्रोग्राम लिखने में मदद मिलेगी। मतलब जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिस प्रॉब्लम के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, क्या कोडिंग लिखना है, ठीक है, तो वो आपको फ्लो चार्ट में से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। So second advantage will be flowcharts act as a guide for blueprint during program design. The next one is in a flowcharts helps in debugging process. Debugging process that means कोई प्रोग्राम आपके सामने है, फ्लो चार्ट आपके सामने है, तो आप फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा। और अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो उस एरर को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो वो आप फ्लो चार्ट के हिसाब से इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। ओके, सो डिबगिंग दैट मीन्स कि अगर हम प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है तो वो पर्टिकुलरली कौन से पॉइंट पे एरर मिलती है या कौन से पॉइंट पे एरर जनरेट होती है, वो हमें इजीली पता चलता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। अनदर एडवांटेज इज विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स प्रोग्राम्स कैन बी इजीली एनालाइज्ड। ओके, सो फ्लो चार्ट का यूज करके हमें जो प्रोग्राम है, ठीक है, हमने जो प्रोग्राम लिखा है कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, सो इट विल बी इजीली एनालाइज। प्रोग्राम को हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट हमारे मगज में फिट बैठ गया है तो हम प्रोग्राम को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि भाई प्रोग्राम में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके लिए प्रोग्राम है, कौन सी प्रोसेस के लिए प्रोग्राम है, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या जनरेट होगा, उसमें क्या क्या लॉजिक दिया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज द एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, सॉरी, ठीक है। सो लेट्स सी अनदर वन। It provides better documentation and flowcharts serve as a good proper documentation. Okay, so it is the advantages of flowchart. Okay. Now we are going to discuss some disadvantages of flowchart. So the first disadvantage of flowchart will be it is difficult to draw flowchart for large and complex program. ठीक है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए अगर फ्लो चार्ट हमें ड्रॉ करना है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज प्रॉब्लम जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने सारे मॉड्यूल्स, अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स बड़े प्रोग्राम को, बड़े बड़े प्रॉब्लम को मॉड्यूल में डिवाइड किया है तो उस सारे मॉड्यूल के हिसाब से हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे। और सभी मॉड्यूल्स के फ्लो चार्ट अगर हमने ड्रॉ कर दिए फिर सारे फ्लो चार्ट को एक ही फ्लो चार्ट में हमें कंबाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर बिग एंड
what we can say that complex program, large and complex program. So that is the first disadvantage. The second disadvantage is in this there is no standard to determine the amount of detail. कौन सी डिटेल, जितनी ज्यादा डिटेल मतलब प्रोग्राम में इनपुट की होगी, कॉम्प्लेक्स लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो उसमें सबसे ज्यादा इनपुट या आउटपुट की डिटेल्स आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है. सो इट इज there is no standard to determine the amount of detail. Difficult to reproduce the flow chart. Okay, reproduce the flow chart, that means flow chart अगर एक बार हमने प्रोड्यूस कर दिया है तो उसको फिर से रिप्रोड्यूस करना, मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. Then the next one is it is very difficult to modify the flow chart. कोई एक पोर्शन में अगर आप फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो उस फ्लो चार्ट कोई भी पॉइंट पे आपने मॉडिफिकेशन किया तो उसके आगे के सारे स्टेप्स को आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है. तो जब भी कोई मॉडिफिकेशन फ्लो चार्ट में अगर आता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इन फ्लो चार्ट. Okay, so it is very difficult for a user to change or to modify the flow chart that is already available. Okay, so these all are the basic term regarding the flow chart. Okay, so this is the first portion of our flow chart. Okay, all of you are instructed to remain present. Okay, because we are going to start another portion of a flow chart, and this is the first portion of the flow chart. Okay, thank you.